So today's topic is focused on brand. When we tell a brand, to define it, a brand is a unique identity. Very rightly told Swechha. That's why I asked her to repeat every time. A brand is a unique identity created for a product, service or a company. It's not only product, it can be service. British Airways, है ना, it Taj Hotels, service, ICICI Bank, Standard Chartered Bank, Swiss Bank, service, any restaurant, service, or a company, Google company, है ना, Microsoft, Apple. A brand is a unique identity created for a product, service, or a company that sets it apart. From competitors in the market. That sets it apart from competitors in the market. It encompasses the name, logo, design, voice, and overall image that represents the value, promises, and experiences associated with the business. A brand is not just about a logo. A slogan. It is not just about a logo or a slogan. Rather, it is the perception. That consumers have of the business and its offerings. Shaped by their interactions, experiences, and emotions. Again, I am repeating, just try to grasp. A brand is a unique identity created for a product, service, or a company that sets it apart from competitors in the market. It encompasses the name, logo, design, voice, and overall image that represents the values, promise, and experiences associated with the business. A brand is not just about a logo or a slogan. It is the perception that consumers have of the business. And its offerings, shaped by their interactions. Promotional interactions means communications, all communications, experiences, and emotions, it says. Right? Everyone getting point? So a brand is basically creating a different perception, a distinctive perception or positioning, you told na, perception in the mind of target audience in terms of its name, symbol, logo, color, flavor, feature, design, shape, so that the consumers understand or create a different perception, different image in the mind. It depicts or it manifests or it explains the particular emotion. When we say Amul, the taste of India, it's an emotional appeal. When we say Cadbury, celebrations, Cadbury is associated with celebrations, you see. D. Damas, Apple, it is creating a particular emotion in your mind. When you ride a Rolls Royce, a particular emotion is in your mind, status,
particular attitude. When you say Realme, a particular emotion is coming in mind. Price leadership, कम दाम में हमको सब कुछ मिल जा रहा है. Distinctive place. Realme has distinctive positioning. जब Realme की बात हम करते हैं तो अलग अलग से कलर, अलग अलग डिजाइन, एक अलग फीचर हमारे दिमाग में आता है. जब आईफोन की बात करते हैं तो एक अलग मेरे दिमाग में आता है परसेप्शन उसके बारे में. ये ऐसा फीचर होगा, ऐसा परफॉर्मेंस होगा, ऐसा लुक होगा, इसको यूज करके हम ऐसा फील करेंगे. जब हम रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं तो एक अलग परसेप्शन बनता है. जब हम हीरो होंडा के स्प्लेंडर की बात करते हैं तो एक अलग परसेप्शन बनता है. जब हम मारुति की बात करते हैं तो एक अलग परसेप्शन बनता है. सोल इंडियन कार, है ना. जब हम फोर्ड की बात करते हैं तो टफ, है ना, टफेस्ट कार, फोर्ड, मजबूत कार. हर एक ब्रांड को तुम ले, कोई भी प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग ही अब आज के जो टाइम में इतना जो हम लोग होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़े हैं, है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? CSR क्यों हो रहा है? ब्रांडिंग के लिए हो रहा है ना. तो ऐसे में हम जानना बहुत जरूरी पड़ जाता है कि व्हाट आर ऑल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ ब्रांडिंग. ब्रांडिंग मीन्स टू क्रिएट ए डिफरेंट इक्विटी, है ना, अपना रिपर्चेज को बढ़ाना. ब्रांडिंग क्यों करते हैं कि रिपर्चेज बढ़े, ब्रांड लॉयल्टी बढ़े, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़े. यही हम लोग इसीलिए ब्रांडिंग करते हैं. तो इसमें बहुत अलग अलग तरीका, बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज है. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन ईच वन ऑफ देम. जस्ट फोकस ऑन, देयर आर 10-11 टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज आई विल डिस्कस राइट नाउ. ओके, if you want you can note down the clarity or differentiation, or you can just even listen. I will share the PPT video, everything, don't worry. First of all is defining a brand. A brand can convey up to 6 levels of meaning. 6 levels of meaning. Number one is attribute. A brand brings in mind certain attribute. Mercedes suggests expensive, well built, well engineered, durable, high prestige automobiles. Attribute. Number two is benefit. Attribute must be translated into benefit. Attribute must be translated into functional and emotional benefits. The attribute durable could translate into functional benefit. I won't have to buy another car for several years. बेनिफिट क्या है इसका? ड्यूरेबल का बेनिफिट है लंबे समय तक मेरे को वो कार नहीं खरीदना पड़ेगा. Benefit. The attributes feature sales, benefit, feature tells, benefit sells is the very famous slogan in marketing field. I won't have to buy another car for several years. The attribute expensive translate into emotional benefits. The car makes me feel important. When I purchase a expensive product, I feel the car makes me feel important and admired. यही होता है ना, माइंड में आता है. अगर हम कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, लोग मेरे को, है ना, इंपॉर्टेंट समझेंगे. कुछ अलग स्थान हमारे कस्टमर के माइंड में बनेगा, मार्केट में मेरा परसेप्शन बनेगा. देन इज वैल्यूज. ए ब्रांड ऑल्सो सेज समथिंग अबाउट द प्रोड्यूसर्स वैल्यूज, जो हम बात कर रहे थे. मर्सिडीज स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड प्रेस्टीज. Am I right? हाई परफॉर्मेंस, प्रेस्टिजियस. तुम मर्सिडीज में घूमोगे तो तुम्हारा अलग, वो लेने वाला का होता ही है वैसे, वैल्यू सिस्टम ही वैसा होता है. क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो पहला हमने बोला एट्रीब्यूट, सेकेंड इज बेनिफिट, थर्ड इज वैल्यू, फोर्थ इज कल्चर. ए ब्रांड लाइक साइलेंटली लिसन एंड ट्राई टू ग्रास्प थिंग. डोंट मेमोराइज बट अंडरस्टैंड. A brand represents a certain culture. The Mercedes represents the German culture, organized, efficient, high quality. अगर इसी को हम इंडियन कंटेक्स्ट में बोले, अमूल, टाटा, है ना, तो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है. मारुति इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है. समझ में आ रहा है? तुरंत एक कल्चर आ जाएगा उसके साथ. BMW अलग कल्चर आ जाएगा, मर्सिडीज अलग कल्चर आ जाएगा, किया, है ना,
किया मोटर्स, हुंडई मोटर्स, अलग कल्चर आ जाएगा, तुम देखना, कोरियन। फिफ्थ इज पर्सनालिटी, एम आई राइट? A brand can project a certain personality. A brand can आगे A brand can project a certain personality. Mercedes may suggest nonsense boss. क्या बोल रहा है? पर्सनालिटी। हाँ हाँ, नॉनसेंस, नो नॉनसेंस बॉस, सॉरी, नो नॉनसेंस बॉस, है ना, थोड़ा अपोजिट हम चले गए। बॉस हमेशा नॉनसेंस ही माना जाता है। बॉस हमेशा मूर्खी कंसीडर किया जाता है, मैं राइट? जो काम किया वो बताएगा बहुत आराम से इस चीज को, जो जॉब में है उसको पता चलता है, उसका बॉस हमेशा उसको मूर्खी लगता है, इसीलिए हम नॉनसेंस बॉस बोले हैं। वो 15 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो, जैसे माँ बाप लोग को लगता है मूर्ख है मेरा आजकल। यूजर, है ना, ये सब क्या देता है? 6 लेवल्स ऑफ मीनिंग्स। पहला एट्रीब्यूट, बेनिफिट, वैल्यू, कल्चर, पर्सनालिटी, यूजर। कैसा यूजर होगा? द ब्रांड सजेस्ट द काइंड ऑफ कंज्यूमर हु बाइज और यूजेस द प्रोडक्ट, एम आई राइट? ब्रांड कैसा यूजर होगा उसको ही बताता है। जब हम रॉयल्स रॉयस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा स्टेटस ओरिएंटेशन, जब हम स्प्लेंडर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा इकोनॉमिकल, वैल्यू फॉर मनी, प्रोफेशनल, है ना, थोड़ा केयरलेस, लो मेंटेनेंस। तो एक पर्सनालिटी को ही बताता है। इस तरह से हमने देखा कि ब्रांड 6 तरीके का मीनिंग देता है। Brand is a name, sign, symbol, logo, color, feature, flavor, or a combination of it. It gives 6 levels of meanings. These are attributes, benefits, values, personality, culture, and user. Right? So now we are moving up to now we are coming to different branding strategies. There are namely 10 or 11 strategies: brand positioning, brand extensions. These are the branding strategies. How marketers do their products branding. कैसे branding करते हैं? Verb, है ना? How they do it. Brand positioning, brand extension, line extension, co-branding, private level branding, umbrella branding, individual branding, personal branding, brand revitalization, luxury branding, then brand loyalty. These are all branding strategies. When we say brand positioning, again that is related to positioning itself. Brand positioning is about how brand is perceived in the mind of consumer relative to the competitors. Positioning means how my brand, my product is considered different. How I am positioning, हम बहुत अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट क्या जो हम बोलना चाह रहे हैं कस्टमर उसको उसी तरीके से ले रहा है? ये दोनों दो बातें हैं। हम प्रमोशन प्रचार में बहुत कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं क्या सच में कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को वैसा ही परसीव कर रहा है? डिफरेंशिएशन हो सकता है ना? होता है। यहीं पर बड़ा बड़ा ब्रांड मैनेजर फेल करता है, और इसीलिए ब्रांडिंग आज भी इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आप 70 साल में कोई ब्रांड बनाए हैं, आप एक कम्युनिकेशन से उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। आप क्या सोच के एक प्रमोशन में क्या होता है? पूरा कम्युनिकेशन है, सब चीज। तो एक कम्युनिकेशन आपने दिया, एक मैसेज दिया, उस मैसेज को कैसे आपके टारगेट ऑडियंस ने परसीव किया? आपका टारगेटिंग प्रॉपर होना चाहिए, इसीलिए, है ना? आप टारगेटिंग क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि हम जो बोले मेरा कस्टमर उसको वैसे ही समझे, वैसे ही उस चीज को एक्सेप्ट करे। ये गैप नहीं होना। दैट इज वाई पोजिशनिंग इज रिक्वायर्ड। इट्स एन स्ट्रेटजी।
पोजीशन करना, टाटा नमक, देश का नमक, है ना, पोजीशनिंग, सर्फ एक्सल, दाग अच्छे हैं, यू नेम इट, यू पर्सन्स माइंड क्रिएटिंग, पोजीशनिंग. A company may position itself as a leader in quality, leader in affordability. Affordability में लीडर हो सकता है. रियलमी, रेडमी है अफोर्डेबिलिटी में लीडर. लो प्राइस में सब चीज ले लीजिए आप उसको. मारुति अफोर्डेबिलिटी है ना, अभी भी सबसे चीपेस्ट कार तुमको तो मारुति ही लेके आया हुआ है अभी पास. Almost, am I right? Maybe. Or innovation, ChatGPT, iPhone, innovation, or sustainability. पोजीशनिंग, किस चीज, क्या हम किस मैसेज को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. अगर हम सचिन तेंदुलकर को ऐड कर रहे हैं, अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो हम अलग चीज पोजीशनिंग कर रहे हैं. हम अगर शाहरुख खान को ला रहे हैं तो अलग पोजीशनिंग कर रहे हैं. अगर हम सलमान खान को ला रहे हैं तो अलग पोजीशनिंग कर रहे हैं. अलग हम आमिर खान को ला रहे हैं, अलग पोजीशनिंग है. अगर हम रोनाल्डो को ला रहे हैं, अलग पोजीशनिंग है. तेंदुलकर को ला रहे हैं, लाता है ना, MS धोनी को ला रहे हैं, अलग पोजीशनिंग है. So, the goal is to establish a distinctive place in the market that resonates with the target audience. The goal is to create a distinctive place in the market that resonates, correlates, resonates with the target audience. जो टारगेटिंग हमने किया हुआ है उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करे हमारा कम्युनिकेशन. Brand position themselves using factors like price, quality, usage or emotions that they evoke. Positioning सबको समझ में आ गया? I hope so. Next is very affordable, most commonly practiced. You will see all the organization, most of the organizations, almost 90% of the organizations practice this strategy. सबसे safe strategy है branding का, brand extension. Let us see what it is. A brand extension occurs when a company, ध्यान से सुनना, a brand extension occurs when a company uses an existing brand name, to launch a new product or service in different categories. ब्रांड एक्सटेंशन क्या है? सेम ब्रांड नेम से डिफरेंट कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना. आई होप यू कैन और कोरिलेट. जब हम LG की बात करते हैं तो LG का वॉशिंग मशीन भी LG नाम से ही है, LG का फ्रिज भी LG नाम से ही है, LG का AC भी LG नाम से ही है. समझ में आ रहा है बात? इट्स एन स्ट्रैटेजी, ब्रांड इक्विटी को सबसे ज्यादा इनकैश करना. एक ब्रांड का जो इक्विटी बन गया है टारगेट मार्केट के माइंड में, उसको ज्यादा से ज्यादा इनकैश करना. उसके बाद है इक्विटी इन दैट. फॉर एग्जांपल, इफ ए सक्सेसफुल क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग accessories or fragrances, it is an example of brand extension. समझ में आ गया बात? सबको क्लियर है? ब्रांड एक्सटेंशन, सेम ब्रांड नेम, डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज. क्लास, नेक्स्ट क्लास पूजा मैडम का है ना, शी इज नॉट कमिंग, सो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम क्लास. राइट? प्लीज साइलेंट, तुम चले जाना इफ यू वांट. ठीक है, कंटिन्यू, फोकस. तुरंत आया है लाइन एक्सटेंशन. समझो, टोटल मार्केटिंग जो 6 महीना पड़े हो ना, यह क्रक्स है उसका. इसलिए 2 घंटा में कंसंट्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई होप सो. लाइन एक्सटेंशन, ये मार्केट में तुम लोग देख रहे होगे आजकल हर दिन में. लाइन एक्सटेंशन, लाइन एक्सटेंशन क्या है?
Line extension consists of introducing additional names. Introducing additional names. Introducing additional names in the same product category under same brand name, such as flavor, color, forms, additional ingredients or pack size.